My dear students, once again welcome to all of you. Students, in previous lecture we have to completed 3 questions of problem set 1.2. Now in this lecture we will start from question number 4. Okay student, now see your question number 4 is here and related diagram is this. This is the related diagram of question number 4. Okay student, in this diagram as you see this angle is given that 60 and this angle is also given that 60. इसके हेल्प से जो हमको इंफॉर्मेशन दिया है इसके हेल्प से क्या प्रूव करना है, देन प्रूव दैट AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC. क्या प्रूव करना है, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC. बट स्टूडेंट दिस इज द BPT. ये क्या है, BPT है. बट BPT अप्लाई कब करते हैं, इफ एनी लाइन इज पैरेलल टू अ साइड ऑफ द ट्रायंगल then this line divides these two sides in the same proportion. BPT कब अप्लाई करते हैं, जब कोई लाइन ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल हो. बट स्टूडेंट दिस लाइन PQ इज नॉट गिवन दैट पैरेलल टू BC के पैरेलल नहीं दिया है. अगर हम लोग ये प्रूव कर दें कि ये PQ BC के पैरेलल है तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं AP अपॉन PB दिस इज इक्वल टू AQ अपॉन QC. BPT कब अप्लाई कर सकते हैं, जब PQ BC के पैरेलल होगा. अगर PQ BC के पैरेलल है स्टूडेंट देन वी कैन अप्लाई BPT एंड बाय यूजिंग BPT वी कैन राइट AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC. तो पहला काम क्या करना है, हमको ये प्रूव करना है कि PQ जो है BC के पैरेलल है. अगर PQ BC के पैरेलल हो गया तो हम लोग BPT अप्लाई कर सकते हैं एंड बाय यूजिंग BPT वी कैन राइट AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC. तो पहला काम क्या करना है, PQ को किसके पैरेलल बताना है, BC के. तो पैरेलल तो है ही है स्टूडेंट. दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री. बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट दीज टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट PQ is parallel to BC. Okay student, now write here student this is given of the question. Angle APQ is given that 60 degree and angle ABC is given that 60 degree. Now we will prove that AP upon PB is equal to AQ upon QC. Then next point is proof. कैसे प्रूव करेंगे हम लोग इसको, पहले क्या प्रूव करना है, ये PQ ना BC के पैरेलल बताएंगे. क्या बताएंगे, PQ BC के पैरेलल. अगर PQ BC के पैरेलल हो गया तो हम लोग BPT अप्लाई कर सकते हैं और BPT अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC. तो मेन इसमें क्वेश्चन में क्या है, हमको ये प्रूफ करना है कि PQ BC के पैरेलल है तो कैसे है. स्टूडेंट नाउ सी इन डायग्राम एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल ABC. Each angle is given that 60 degree. Each angle is given that 60 degree. Okay student, therefore APQ is equal to ABC. Means this angle is equal to this angle. Each angle is given that 60 degree. Okay student, now by corresponding angle test these sides PQ is parallel to BC. करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट क्या होता है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस एंड इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल. अंडरस्टूड ना. इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स formed by two lines and their transversal are congruent then the lines are parallel. अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है तो इसका मतलब लाइन कैसी है, पैरेलल है. तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, therefore PQ is parallel to BC. इसको आपने कैसे लिखा, इसका रीजन लिखना है by corresponding angle test. by corresponding angle test for two parallel lines. Okay student, now PQ is parallel to BC. अब देखो PQ BC के पैरेलल हो गया, अब हम लोग BPT अप्लाई कर सकते हैं. अब क्या लिखेंगे, now in triangle ABC PQ
PQ is parallel to BC, therefore by BPT, what is the BPT? BPT is basic proportionality theorem. By BPT, what we can write here from the diagram? AP upon PB, this is equals to AQ upon QC. Okay student, now ये प्रूव करना था ना. Now write here hence proved. Okay student, understood na? Now note down this solution. Okay student, now see next question number 5. In trapezium ABCD, student, this is a trapezium. Do you know what is a trapezium? How to define trapezium? ट्रेपेजियम आपको मालूम है क्या? क्या होता है ट्रेपेजियम? अ क्वाड्रिलेटरल in which one pair of opposite sides are parallel, then it is known as trapezium. तो डेफिनेशन जो मैं बोलता हूं ना, उसको साइड में कहीं न कहीं लिखते जाओ. ट्रेपेजियम क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल in which one pair of opposite sides are parallel, then it is called trapezium. Okay student, this quadrilateral ABCD is given that a trapezium. Side AB is parallel to PQ is parallel to DC. Side AB is parallel to PQ is parallel to DC. ये तीनों लाइन पैरेलल दिया है. Okay student, and AP is given that 15, PD is given that 12, QC is given that 14. Find BQ. Student, first write down given. This is question number 5. फर्स्ट क्या हम लोग लिखेंगे? गिवन में क्या लिखते हैं? इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन. जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया रहता है उसको हम लोग किसके अंडर लिखते हैं? गिवन के अंडर. व्हाट्स आर गिवन? क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम. क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम. Quadrilateral ABCD are trapezium, and in this diagram given that AB is parallel to PQ is parallel to DC, and also AP is given that 15. Student, this segment AP is given that 15, and PD is given that 12. QC is given that 14, and we will find BQ. क्या फाइंड आउट करना है? BQ फाइंड आउट करना है. ओके स्टूडेंट, नाउ सी इन दिस डायग्राम. दिस लाइन AB is parallel to PQ is parallel to DC, and AP is 15. Student, this segment AP is given that 15, and AP is 15, PD is 12. Student, this is PD is given that 12, QC is 14. This segment QC is given that 14, and we will find BQ. क्या फाइंड आउट करना है? ये BQ फाइंड आउट करना है. तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करना है. स्टूडेंट, देयर आर 3 पैरेलल लाइंस. तो व्हाट वी विल अप्लाई इन दिस क्वेश्चन? Property of 3 parallel lines and their transversal. Okay student, now by property of 3 parallel lines, and their transversal. Okay student, how to apply the property of 3 parallel lines and their transversal? Student, the ratio of intercepts made on the first transversal is equals to the ratio of intercept made on the second transversal. Okay student, there are 3 parallel lines AB, PQ, DC. 3 पैरेलल लाइन है, एंड दिस इज फर्स्ट ट्रांसवर्सल, दिस इज सेकेंड ट्रांसवर्सल. तो अप्लाई कैसे करते हैं? रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड ऑन द फर्स्ट ट्रांसवर्सल मीन्स AP अपॉन PD. दिस इज इक्वल टू BQ अपॉन QC. ओके स्टूडेंट, नाउ राइट हियर AP अपॉन PD. दिस इज इक्वल्स टू BQ अपॉन QC. स्टूडेंट, दिस इज द
property of three parallel lines and their transversal. Now substitute the values of given segments. What segments are given? Student, AP is given that 15, so substitute these values. AP is 15 upon PD. PD is given that 12. This is equals to BQ. Student, we will find BQ, so we have to write as it is BQ upon QC. QC is given that 14. अब यहां से इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद क्या करेंगे? देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा. दिस इज 15 एंड दिस इज 12. तो ये दोनों किससे 3 से कैंसिल हो जाएगा. 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा. ओके, देन वी गेट 5 upon 4. After cancellation we get 5 upon 4. This is equals to BQ upon 14. Okay student, now by cross multiplication 4 into BQ, this is equals to 14 into 5. Therefore BQ is equal to 14 into 5 upon 4. This 4 taken this side becomes in division. Now 14 and 4 cancel out by 2. 2 2 जा and 2 7 जा. तो बताओ BQ कितना मिल रहा है यहाँ पर. BQ is equal to 7 into 5. 7 into 5. 7 5 जा 35. Divide by 2. 2 से डिवाइड कर दिया. कितना आ जाएगा. 2 1 जा 2 7 जा 14 2 5 जा. तो कैंसिलेशन आपको आता है. कैंसिल करके कितना मिल गया. 17.5. राइट हियर यूनिट्स. क्या लिखना है. यूनिट्स. स्टूडेंट, BQ इज 17.5 यूनिट्स. ओके स्टूडेंट, नाउ नोट डाउन दिस. ओके स्टूडेंट, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड QP यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर. स्टूडेंट, दिस इज द फिगर फॉर क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 के लिए डायग्राम दिया है. Given informations are this MQ is 14 and this MN is 25 and this PN is 40 and student this segment NQ is bisector of angle N. Okay student, this one is clear now. These are two identical marks. This identical mark represent this segment is bisector of this angle. बात समझ में आई क्या. दोनों आइडेंटिकल मार्क है. आइडेंटिकल मार्क में सेम मार्क, इक्वल मार्क, सेम जैसा मार्क ए है वैसा मार्क ए है. तो क्या रिप्रेजेंट करता है. दिस सेगमेंट इज बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल एंड सम इंफॉर्मेशन मींस MQ, MN एंड NP आर गिवन. फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन वी विल फाइंड QP. क्या फाइंड आउट करना है. QP फाइंड आउट करना. तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये जो इंफॉर्मेशन देख के क्या फाइंड आउट करना है QP. और ये मालूम है आपको ये बाइसेक्टर है, तो क्या यूज करेंगे हम लोग. एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी. बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी स्टूडेंट वी कैन राइट MN अपॉन NP. क्या लिखेंगे हम लोग. एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो कैसे. MN अपॉन क्या. NP. दिस इज इक्वल्स टू. अच्छा, MN को न्यूमरेटर में लिखा है तो MN के बाजू में क्या है MQ. तो MQ को इधर न्यूमरेटर में लिखेंगे. MQ अपॉन क्या QP. बात समझ में आई क्या. ये कैसे हमने लिखा. कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया, कौन सा थ्योरम यूज किया. एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. अब इसके बाद हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. MN इज गिवन and NP is given and MQ is given and from substituting these values we will find QP by cross multiplication. Student understood na. Then first write down given. What information are given. Student, in triangle MNP, in triangle MNP, MN is given that 25, MQ is given that 14 and NP लिखो चाहे PN लिखो. NP is given that 40 and we will find QP. क्या फाइंड आउट करना है QP. अब स्टूडेंट, दिस इज एंगल बाइसेक्टर. दिस NQ इज एंगल बाइसेक्टर. नाउ राइट डाउन since NQ is bisector of
बाइसेक्टर ऑफ एंगल यन। कौन से एंगल का बाइसेक्टर है? एंगल यन का। इसको आप 3 लेटर से भी लिख सकते हैं, एंगल यम यन पी, या सिंगल लेटर से लिखो या 3 लेटर से लिखो। ओके स्टूडेंट, नाउ यन क्यू, दिस यन क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, सो वी विल यूज हियर एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। बाय एंगल बाइसेक्टर, चलो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके स्टूडेंट, हाउ टू यूज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? इन दिस डायग्राम यम अपान यन पी, this is equals to mq upon qp. Now substitute the values. mn is given that 25, np is given that 40, mq is given that 14, and qp we will find qp. Okay student, this is 25, this is 40. 25 and 40 cancel out by 5. 5 8 जा 40 and 5 5 जा 25. In left hand side we will get 5 upon 8. लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिल गया? आफ्टर कैंसिलेशन इन लेफ्ट हैंड साइड वी विल गेट 5 upon 8. दिस इज इक्वल्स टू 14 upon QP. नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 into QP, this is equals to 8 into 14. Now QP is equals to 8 into 14. This 5 divide by 5. Okay. Now 8 को 5 से कैंसिल कर सकते हैं। किसको? 8 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 1 जा 5, कितना बच गया? 3, यहाँ पॉइंट लगा दिया 0, 5 6 जा 30. तो 8 cancel out by 5, we get 1.6. Okay student, now QP is equal to 1.6 into 14. 1.6 into 14. चलो इसको मल्टीप्लाई कर लो। 1.6 into 14. 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 2 कैरी 6, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, दिस इज 4, 6 plus 6 12, 1 कैरी 2, कितना आ गया? 22.4. QP is equal to 22.4 units. Okay student, understood now note down the solution. Okay student, now see next question number 7. Student, for question number 7 this diagram is given and your question is here. In figure, if AB is parallel to CD is parallel to EF, then find X and AE. Student, in this diagram AB is parallel to CD is parallel to EF. Then find X and also find AE. Okay student, diagram समझ में आया क्या? Student, you understood this diagram? In this diagram, this AB, this segment AB is parallel to CD is parallel to EF, and student, this segment BD is given that 8 and this segment DF is given that 4 and AC is given that 12 and CE is given that X. क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड X and AE. फाइंड X. फर्स्ट वी विल फाइंड X. पहले क्या निकालेंगे? X. इसके बाद क्या बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए? AE कैसे फाइंड आउट करेंगे? AE कैसे फाइंड आउट करेंगे? सम ऑफ AC एंड CE वी गेट सेगमेंट AE. ओके स्टूडेंट, नाउ सी AB is parallel to CD is parallel to EF. Student, there are 3 parallel lines and 2 transversal. Then again we will use property of 3 parallel lines and their transversal. Okay student, now first write down given. Given में क्या लिखेंगे? AB is parallel to CD is parallel to EF and BD is given that 8, DF is given that 4 and AC is given that 12, CE is given that X.
नाउ वी विल फाइंड, क्या लिखेंगे इधर, टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, द वैल्यू ऑफ x, एंड आल्सो वी विल फाइंड AE. Okay student, now here we will use the property of three parallel lines and their transversal. By property of three parallel lines and their transversals. Okay student, by using this property we can write, अभी प्रॉपर्टी इसके पहले सम में किया था, BD अपॉन DF इज इक्वल टू AC अपॉन CE. ओके स्टूडेंट, BD अपॉन क्या लिखेंगे इधर, BD अपॉन DF इज इक्वल्स टू AC अपॉन CE. Okay, now substitute the values. BD is given that 8, DF is given that 4. This is equals to AC is given that 12, and CE is given that X. Now see in left hand side, 8 upon 4, 4 1 ja 4 2 ja. Left hand side we get 2. This is equals to 12 upon x. Now this x taken this side becomes in multiplication. ये x इधर किस में है, डिवीजन में, डिवीजन से इधर आएगा किस में होगा, मल्टीप्लिकेशन में. 2 into x, this is equal to 12. Now x is equal to 12. This 2 taken this side upon 2. Now 2 6 जा, therefore x is equal to 6. x की वैल्यू कितना मिल गई, 6. x इज इक्वल टू 6. चलो एक आंसर मिल गया. क्या क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ a. ओके स्टूडेंट, नाउ सी इन दिस डायग्राम, AE स्टूडेंट, दिस सेगमेंट इज AE इज इक्वल्स टू AC प्लस CE. AC प्लस CE वी गेट AE. क्यों आपने प्लस किया, स्टूडेंट, दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट, सो राइट इट्स रीजन A डैश C डैश E. इसका मतलब समझते हैं क्या, A डैश C डैश E मीन्स पॉइंट्स A C E आर कोलिनियर पॉइंट्स. ओके स्टूडेंट, नाउ A इज इक्वल टू AC. AC की वैल्यू कितना है, 12 है. CE की वैल्यू कितना है, x है, एंड x इज इक्वल टू 6. Therefore A is equal to 12 plus 6 is 18. Understood? Okay student, now note down this solution. Now see next question number 8. In triangle LMN, MT, ray MT, student, this is ray MT bisects angle LMN. This ray MT bisects angle LMT. Name of this angle is LMT. This ray bisects this angle, and LM is given that 6, and MN is given that 10, and TN is given that 8. Then find LT. क्या फाइंड आउट करना है, दिस सेगमेंट LT. तो कौन सा थ्योरम यूज करेंगे स्टूडेंट, अगेन वी विल यूज angle bisector theorem, because of this is given that angle bisector. Okay student, now first we will write given. What's are given in triangle LMN, ray MT. Student, this is the symbol of ray MT bisects angle LMN, and LM is given that 6, MN is given that 10, and TN is given that 8. We will find, क्या फाइंड आउट करना है, LT. दिस सेगमेंट, वी विल फाइंड दिस सेगमेंट. ओके, नाउ वी हैव टू राइट हियर, since ray MT
bisect since ray MT bisects angle LMN। ये जो रे है ना इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? बाई एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लिखो चाहे थ्योरम। बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम व्हाट वी विल राइट? LT अपॉन TN। दिस इज LT को किधर लिखा? न्यूमरेटर में लिखा, तो दूसरे साइड में न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? LM अपॉन MN। आ रहा है ना सबको यूज करने? तो ऐसा इधर कंफ्यूज मत होना कि इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया, इसको राइट हैंड साइड में। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? LM अपॉन MN। LM इधर न्यूमरेटर में लिखा तो इधर न्यूमरेटर में LT अपॉन TN। अच्छा, इसी को और कैसे आप लिख सकते हैं? MN। अब इसको हमने न्यूमरेटर में ले लिया, MN अपॉन LM। अच्छा, MN को न्यूमरेटर में लिखा तो इधर क्या न्यूमरेटर में लिखेंगे? तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? TN अपॉन क्या आ जाएगा? LT। बात समझ में आ रहा है ना? कैसे भी लिखो, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, तीनों एक ही चीज है। ओके स्टूडेंट, नाउ हियर सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ गिवन सेगमेंट्स। LT is given that 6, so LT is 6, TN is given that 8, LM is given that 6. This is LT. Okay students, sorry, this LT we will find LT, so LT is right as it is, LT upon TN is 8, LM is 6 and MN is 10. Okay, now see right hand side, 6 upon 10 cancel out by 2, 2 3 ja, 2 5 ja. Okay, now LT upon 8, this is equals to 3 upon 5. Now by cross multiplication, 5 into LT, this is equals to 8 into 3. Then LT is equal to 8 into 3, this 5 taken this side upon 5। तो 8 को 5 से डिवाइड कर दो, किसको? 8 को किससे डिवाइड कर दो? 5 से। 5 1 जा 5, कितना आ गया? 3, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, 5 6 जा 30, तो कैंसिल करने के बाद कितना आ गया? 1.6। Therefore LT is equal to 1.6 into 3, तो LT is equal to 16, 3 जा कितना होता है? 48 होता है। 1 डिजिट पे पॉइंट है तो 1 डिजिट पे पॉइंट लग गया। सो LT is equal to 4.8 units। LT is equal to 4.8 units। Okay student, now understood na? Now note down this solution। Okay student, now see next question number 9। In triangle, student, this is related diagram of question number 9। In triangle ABC, in triangle ABC segment BD, student, this is segment BD bisects angle ABC। student, this is angle ABC, name of this angle is ABC, clear na? And this ray BD bisect this angle, it means BD is bisector of this angle। BD क्या है? बाइसेक्टर है, किसका? एंगल ABC का। एंड इफ AB is equal to X, AB कितना दिया है? X, एंड AD is given that X minus 2, DC कितना दिया है? X plus 2, एंड BC is given that X plus 5, then find the value of X। तो बाइसेक्टर इसमें दिख रहा है, तो सिंपल सी बात है, कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके स्टूडेंट, बट फर्स्ट राइट डाउन गिवन। इन ट्रायंगल ABC, रे BD bisects angle ABC, and AB is given that X, AD is given that X minus 2, CD is given that X plus 2,
and BC is given that x plus 5, we will find the value of x. Okay student, now तो क्या हम लोग यूज करेंगे, ये देख रहे हैं ना बाइसेक्टर है, दिस इज एंगल बाइसेक्टर, दिस रे BD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। तो सिंपल सा अपने को समझ में आना चाहिए, जब एंगल बाइसेक्टर दिया है तो क्या हम लोग यूज करेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो एक बार यहां फिर से हम लोग लिखेंगे, सिंस रे BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC, then by angle bisector, then by angle bisector theorem, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करने आ गया आपको। तो AD अपान DC इज इक्वल टू AB अपान BC, या इसको ऐसे लिखो AB अपान BC इज इक्वल टू AD अपान DC। तो क्या लिखूं मैं इधर, AB अपान BC। अब इधर AB लिखा है, AB कहां लिखा है, न्यूमरेटर में, तो दूसरे साइड में क्या होगा, न्यूमरेटर AD अपान क्या, DC। ओके स्टूडेंट, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, AB इज गिवन दैट x, BC इज गिवन दैट x plus 5, this is equals to AD is given that x minus 2 and DC is given that x plus 2. Okay student, now by cross multiplication x into x plus 2 and x plus 5 into x minus 2, okay, then x into x plus 2, x into x plus 2, this is equals to x plus 5 into x minus 2, x plus 5 इंटू x माइनस 2। चलो x से मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू x कितना, x स्क्वायर, x इंटू 2 इज 2x एंड इन राइट हैंड साइड दिस x इंटू x स्क्वायर, x का मल्टीप्लिकेशन -2 में -2x। अच्छा x का ये पूरे ब्रैकेट में हो गया, बराबर ना, मल्टीप्लिकेशन आता है आपको x प्लस 5 इंटू x माइनस 2, x को पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका सेकेंड टर्म 5 लेंगे, 5 को पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो x का मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर 5 से मल्टीप्लाई करना, 5 इंटू x कितना आ जाएगा, प्लस 5x, प्लस इंटू माइनस, ये देखो यहाँ पर माइनस आ गया, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 2 जा कितना आ गया 10। अच्छा एक चीज देखो, दोनों साइड में x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर, दिस x स्क्वायर कैंसिल आउट बाई x स्क्वायर। अच्छा क्यों कैंसिल हो गया, सोचो इसको जब इधर हम लोग ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर, ये वाला x स्क्वायर इधर गया माइनस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कट गया, मतलब इधर ही हमने कैंसिल कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच रहा है, 2x। अच्छा राइट हैंड साइड में देखो जरा, ये -2x प्लस 5x, माइनस 2x प्लस 5x, बोथ द टर्म हैविंग अपोजिट साइन, दोनों का साइन कैसा है, अपोजिट साइन है, और अपोजिट साइन में प्लस करते हैं कि माइनस करते हैं, बड़े नंबर में छोटा नंबर माइनस, 5x माइनस 2x कितना आएगा, 3x। अच्छा साइन किसका लिखते हैं, साइन ऑफ बिगर नंबर। इफ नंबर्स हैविंग अपोजिट साइन मीन्स one term is in plus and other term is in minus, then we subtract smaller number from bigger number, but we have to write the sign of bigger number, बड़े नंबर का साइन लिखते हैं। तो बड़ा नंबर क्या है 5x, ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ गया, और एकदम पहले प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये दोनों को सिंप्लीफाई किया, कितना आ गया 3x, देन -10। बात समझ में आई क्या, 2x इज इक्वल टू 3x माइनस 10, देन 2x, ये 3x को इधर ले लो, -3x, दिस इज इक्वल टू -10, दिस इज इक्वल टू -10। तो 2x माइनस 3x बताओ, 2x माइनस 3x, 2x में 3x माइनस होगा नहीं, सेम यही वाला कॉन्सेप्ट, दीज टू टर्म्स हैविंग अपोजिट साइन, देन वी गेट -1x, और 1 कोएफिशिएंट में लिखने की जरूरत नहीं है, एंड इन राइट हैंड साइड देयर इज -10, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड, नाउ नोट डाउन।
Now see next question number 10. Student, this is related diagram of question number 10 and question is here. In this figure, x is any point in the interior of the triangle. Student, this point is x. X is any point in the interior of triangle DEF. देख रहे हो ना, ट्रायंगल DEF, इसके इंटीरियर में कोई पॉइंट x है. x is any point in the interior of triangle. Point x is joined to vertices of triangle. Point x joined vertices of triangle. ट्रायंगल कौन सा? ट्रायंगल DEF. वर्टाइसेस आर पॉइंट D, पॉइंट T एंड पॉइंट F. ये x को वर्टाइसेस से ज्वाइन किया है, ये देख रहे हैं डायग्राम में. एंड सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू DE. दिस सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू सेगमेंट DE एंड segment QR, and this segment QR is parallel to EF, fill in the blanks to prove that. Blanks means activity type question है student. Fill in the blanks to prove that segment PR is parallel to segment DF. क्या प्रूफ करना है? segment PR इज पैरेलल टू सेगमेंट DF. ये हमको प्रूफ करना है. ओके स्टूडेंट, दिस इज एक्टिविटी टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो हम लोग इसको पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोग जो बॉक्स है उसको फिल कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, सो व्हाट्स आर गिवन इन दिस क्वेश्चन? in triangle DEF. Okay student, this is triangle DEF, and in this diagram this PQ is parallel to DE. This PQ is parallel to DE and this QR is parallel to EF. Then we will prove that this PQ is parallel to DF. ये दोनों पैरेलल है, ये हमको प्रूफ करना है. और ये पैरेलल दिया है, ये दोनों पैरेलल दिया है, ये दोनों पैरेलल होगा ऐसा प्रूफ करना है. ओके स्टूडेंट, नाउ फर्स्ट राइट डाउन गिवन. Write down given in triangle DEF, PQ is parallel to DE and QR is parallel to EF. QR is parallel to EF. And to prove क्या प्रूफ करना है? सेगमेंट PR इज पैरेलल टू सेगमेंट DF. ओके स्टूडेंट, चलो इसको प्रूफ करते हैं. एक्टिविटी टाइप का दिया है, इसमें बॉक्स दिया है, मैं इसको पूरा सॉल्व करके बता रहा हूं और आप बॉक्स को भर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रूफ. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रूफ. नाउ स्टूडेंट, सी इन दिस डायग्राम, दिस PQ ऑरेंज कलर से मैं बना रहा हूं. दिस PQ इज पैरेलल टू DE. नाउ कंसीडर दिस ट्रायंगल DXE. in triangle DXE, this side PQ is parallel to D. Then we can apply BPT अप्लाई कर सकते हैं ना. In any triangle, if any line is parallel to a side of triangle, then we can apply BPT. Now in triangle DXE, in triangle DXE, PQ is parallel to DE और ये इंफॉर्मेशन दिया है. ये देखो PQ किसके पैरेलल दिया है? DE के. तो हमने क्या कंसीडर किया? ट्रायंगल DXE, इसमें ये साइड इसके पैरेलल है, तो हम लोग BPT अप्लाई कर सकते हैं. तो चलो BPT अप्लाई कर दिया, तो क्या लिखेंगे? XP अपान PD इज इक्वल टू XQ अपान QE. नाउ बाय BPT क्या लिखेंगे? XP अपान PD इज इक्वल टू XQ अपान QE. ओके स्टूडेंट, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1. बात समझ में आई क्या? ये ट्रायंगल हमने कंसीडर किया. इन ट्रायंगल DXE, this PQ is parallel to this side, therefore by BPT we can write this. Okay,
Now we consider triangle XEF. In this triangle XR is parallel to EF. This is given. XR किसके पैरेलल है? EF के. ये इंफॉर्मेशन दिया है. Again in this triangle we can apply BPT. Now in triangle XEF. In triangle XEF क्या पैरेलल दिया है? कौन? अच्छा, ट्राइंगल नहीं दिख रहा है तो ट्राइंगल देखो XEF, ये वाला ट्राइंगल दिखा अभी, ट्राइंगल ब्लू कलर का. XR इज पैरेलल टू EF. XR इज पैरेलल टू EF. ये पैरेलल आपने कहां से लिखा? ये तो गिवन है. ये देखो QR. This is QR. Sorry, this is QR. QR is parallel to EF. This QR is parallel to EF. Again by BPT. By BPT, what we can write here? XQ upon QE. XQ upon QE. This is equals to XR upon RF. XR upon RF. Let this is equation number 2. Student observe equation 1 and 2. Equation 1 and 2 को ऑब्जर्व करो. Equation 1 is XP upon PD is equal to XQ upon QE, and this is XQ upon QE is equal to XR upon RF. From equation 1 and 2, from equation 1 and 2. 1 and 2 देखो जरा. अच्छा, 1 क्या है? XP upon PD. XP अपान क्या है? PD. अच्छा, XP अपान PD किसके इक्वल है? XQ अपान QE. XQ अपान QE. Now see from equation 2. This is equation 2. XQ upon QE. XQ upon QE. This is equals to XR upon RF. This is equals to XR upon RF. ये बात समझ में आई क्या? अच्छा, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखो. इफ X इज इक्वल टू Y एंड P इज इक्वल टू Y, तो ये दोनों से रिलेशन आप कैसा लिख सकते हैं? X इज इक्वल टू Y एंड Y इज इक्वल टू P. ये तीनों इक्वल हो गया. तो वही काम हमने किया है. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट दिस. तो यहां से क्या हम लोग लिख सकते हैं? XP अपॉन PD. This is equals to XR upon RF. Therefore XP upon PD is equal to XR upon RF. Okay, student. This ratio is equal to this ratio and this ratio is equal to this ratio. Therefore this ratio is equal to this. एक कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है? ट्रांजिटिविटी. If first is equal to second and second is equal to third, it means first is equal to third. अच्छा, अब डायग्राम में देखो जरा, ये क्या मिला हमको? XP अपॉन PD. कहाँ है XP? ये देखो XP, ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है XP. दिस सेगमेंट इज XP. XP अपॉन PD इज इक्वल टू क्या? XR अपॉन RF. अच्छा, अभी ये वाले ट्रायंगल में आ जाओ. कौन से ट्रायंगल में? XDF में. इन ट्रायंगल XDF, PR, this segment PR divides these two sides in same proportion, then by converse of BPT we can say this PR is parallel to DF. ओके स्टूडेंट, बात समझ में आई क्या? ये XP अपान PD दिख रहा है क्या आपको? XP अपान PD इज इक्वल टू XR अपान RF. ये दोनों का रेशियो, ये दोनों के रेशियो के इक्वल है. तो ये कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है? ट्रायंगल XDF. ओके स्टूडेंट, इन ट्रायंगल XDF ratio of this side is equal to ratio of this side, therefore PR is parallel to DF. Converse of BPT याद है क्या? if any line divides any two sides of a triangle in same proportion, then that line is parallel to third side of the triangle. इसके बाद हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? therefore PR, this segment PR is parallel to DF.
इज पैरेलल टू DEF। अब इसका रीजन क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। ओके स्टूडेंट, नाउ हेंस प्रूव्ड, ओके स्टूडेंट, नाउ नोट डाउन। एक्चुअली ये सम कैसा था, एक्टिविटी टाइप का था, तो जो बॉक्स है आप उसको भर लो। ओके, नाउ नोट डाउन स्टूडेंट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 question is, in triangle ABC ray BD bisects angle ABC and ray CE bisects angle ACB. If segment AB is congruent to segment AC, then prove that ED is parallel to BC. Okay student, in this question one triangle ABC is given. One triangle ABC is given. Let this is triangle ABC. Let this is triangle ABC. अब इस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया है, क्वेश्चन को रीड करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम। इन ट्रायंगल ABC रे BD, अच्छा रे BD, तो रे BD कहाँ से निकलेगी, B से निकलेगी। B इज इट्स ओरिजिन। रे BD बाइसेक्ट एंगल ABC। स्टूडेंट दिस इज एंगल ABC, रे BD इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो चलो रे BD हमने ऐसे बना दिया, दिस इज रे BD एंड रे CE, ये बाइसेक्ट कर रही रे BD, दिस रे BD बाइसेक्ट एंगल ABC, मीन्स BD इज बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, बात समझ में आ गई। एंड रे CE, C यहां से रे CE कहां से निकलेगी, यहां पॉइंट C से। C इज ओरिजिन ऑफ दिस रे CE बाइसेक्ट एंगल ACB। स्टूडेंट दिस एंगल इज एंगल ACB, इसका ये बाइसेक्टर ये है। लेट दिस इज पॉइंट E। बात समझ में आई है क्या, डायग्राम समझ में आया। इन ट्राइंगल ABC रे BD, दिस इज रे BD bisects angle ABC, this is angle ABC and ray CE, student this is ray CE, this ray CE bisects angle ACB, this angle is ACB, ये इसका बाइसेक्टर है। ओके, नाउ इफ सेगमेंट AB is congruent to AC, ये जो सेगमेंट AB है ना, AB, ये पूरा सेगमेंट AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। देन प्रूव दैट ED इज पैरेलल टू BC। क्या प्रूव करना है, ED इज पैरेलल टू BC। ये देखो ED यहाँ, इसको ज्वाइन कर देंगे तो ED हो जाएगा। ED किसके पैरेलल प्रूव करना है, BC के पैरेलल प्रूव करना है। तो बात समझ में आ गई। देन स्टूडेंट फर्स्ट राइट डाउन गिवन, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC रे BD bisects angle ABC and ray CE bisects angle ACB and also given that AB is congruent to AC. Segment AB is congruent to AC. Then prove that, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट ED is parallel to BC, ये जो सेगमेंट ED है ना, किसके पैरेलल प्रूव करना है, BC के पैरेलल प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट, नाउ सी इन दिस डायग्राम स्टूडेंट दिस रे बाइसेक्टर, BD क्या है, बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है, ये एंगल का, तो इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC रे BD इज बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, देयरफॉर वी कैन अप्लाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रूफ। इन ट्रायंगल ABC, कौन से ट्रायंगल में, ABC, कौन सी रे BD bisects angle
ABC. Okay student, this ray BD bisect this angle, therefore by angle bisector theorem, by angle bisector theorem. Student, what you can write by using angle bisector theorem? Ray BD, this ray BD bisect this angle, therefore by angle bisector theorem AD upon DC is equal to AB upon BC. Okay student, now AD upon DC, this is equals to AB upon BC. Okay student, let this is equation 1. Understood ना? दिस रे BD, ध्यान से देखो ये BD क्या है, बाइसेक्टर है, तो ये साइड को कहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है, पॉइंट D पर. इट मीन्स AD अपॉन DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC. एंड अगेन नाउ इन ट्रायंगल ABC, स्टूडेंट दिस रे CE बाइसेक्ट एंगल ACB. रे CE bisects angle ACB. This ray CE bisects angle ACB. Student, name of this angle is ACB. इसको bisect कर रहा है, means CE is bisector. तो इसका अपोजिट साइड कौन सा है, AB को कहाँ पे डिवाइड कर रहा है, पॉइंट E पर. तो AE अपॉन BE by angle bisector theorem, by angle bisector theorem. ओके स्टूडेंट, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसमें इन ट्रायंगल ABC CE इज बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, देन बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वी कैन राइट AE अपॉन BE इज इक्वल टू क्या, AC अपॉन BC. AE अपॉन BE this is equals to AC upon BC. Okay student, AC upon BC. Okay student, now see equation 1. AD upon DC is equal to AB upon BC. AB upon BC, इधर भी अगर AB upon BC आता तो हम लोग दोनों को इक्वेट कर सकते थे. एंड स्टूडेंट दिस AC is given that AC किसके इक्वल है, एक गिवन में हमने लिखा है AC is congruent to AB. किसके इक्वल दिया है, AC is congruent to AB. So this AC replaced by BC. This AC replaced by AB. AC किसके इक्वल है, AB के इक्वल है. So we have to write AE upon BE, this is equals to AC, and AC is given that AC is equals to AB. तो AC को मैं क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस कर दे रहा हूँ, इसकी जगह क्या लिख रहा हूँ, AB अपॉन क्या हो गया, BC. लेट दिस इज इक्वेशन 2. नाउ स्टूडेंट ऑब्जर्व इक्वेशन 1 and 2. राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 and 2, AB upon BC, and this is AB upon BC. From equation 1 and 2, स्टूडेंट मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ. From equation 1 and 2, from equation 1 and 2, student equation 1 is AD upon DC. Equation 1 is AD upon DC. This is equals to AB upon BC. And students see equation 2, AB upon BC, this is equals to AE upon B. तो AB upon BC किसके इक्वल, AE upon BE. ओके स्टूडेंट, तो ये रिजल्ट लिख सकते हैं ना फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. ये देखो AD upon DC इज इक्वल टू क्या, AB upon BC, एंड दिस AB upon BC इज इक्वल टू AE upon B. Okay student, now see here, this ratio is equal to this and this ratio is equal to this. So we have to write this AD upon DC is equal to third ratio. Therefore AD upon DC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AE upon B. ये कौन सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, ट्रांजिटिविटी. इफ फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड एंड सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड, देन वी कैन से फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड.
this ratio is equal to this and this ratio is equal to this, then we can say this first ratio AD upon DC is equal to AE upon B. Student, now see in this diagram, यहाँ से हमको क्या मिला, AD upon DC, AD upon DC is equal to क्या, AE upon B, AE upon B, AD upon DC is equal to AE upon B. Student, it means this segment ED divides AB and AC in the same proportion. Therefore, by converse of BPT, we can say this ED is parallel to BC. Therefore, ED is parallel to BC by converse of BPT. ओके स्टूडेंट, इसका रीजन हो गया. नाउ हेंस प्रूव. अंडरस्टूड ना. यहाँ पर ये समझ में आए क्या, यहाँ से क्या मिल गया, AD अपॉन DC, दिस इज इक्वल टू AE अपॉन B. और कन्वर्स ऑफ BPT क्या होता है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो दैट इज इन प्रपोर्शन, देन दैट लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल. सो स्टूडेंट, दिस सेगमेंट ED इज पैरेलल टू BC. रीजन क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ BPT. ओके स्टूडेंट, नाउ राइट हियर हेंस प्रूव. Now student, note down this solution. In this way, student, we have to complete this practice set 1.2.